हे पीपल, आज बात करते हैं क्रिकेटर स्मृति मंदाना एंड पलाश मुंगशल की वेडिंग एक्चुअल में क्यों पोस्टपोन हुई। दोनों का रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि एक लड़की ने पलाश को एक्सपोज किया है जिसका नाम है मैरी डे कोस्टा। उसने कुछ चैट्स शेयर किए थे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। उसके बाद लोगों ने उस लड़की को ही क्रिटिसाइज़ किया कि तुम पलाश से मिलने क्यों गई, तुम्हें क्या ज़रूरत थी चैट्स की। फिर उस लड़की ने क्लेरिफाई किया था कि उसने बस चैट किया, वो कभी उससे मिलने नहीं गई। लेटर ऑन एवरीवन रियलाइज्ड कि ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ पलाश इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो लड़की एक कोरियोग्राफर है। जो कोरियोग्राफर स्मृति की शादी में प्रेजेंट थे उनमें से एक नाम सामने आता है नंदिका द्विवेदी। नंदिका को टीम बॉस्को की तरफ से अपॉइंट किया गया था टू ट्रेन पलाश फॉर वेडिंग फंक्शंस। जैसे ही ये न्यूज़ सर्कुलेट होती है, पलाश और नंदिका के फोटोज़ वायरल हो जाते हैं। फिर लोग नंदिका को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनकी इंस्टाग्राम पर जाकर उन्हें मैसेज करते हैं, जिसके चलते नंदिका को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक से प्राइवेट करना पड़ जाता है। निका की इस हरकत से लोगों को लगा यह वही लड़की है जिसके साथ पलाश इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट सडनली प्राइवेट कर लिया। अभी तक सबको यही लग रहा था शायद ये रूमर्स हो सकते हैं, शायद ये फेक न्यूज़ हो सकती है। लेटर ऑन एक पोस्ट पब्लिक होता है जिससे पता चलता है ये सब रूमर्स नहीं, ये सच है। इस पोस्ट के थ्रू पता चला कि स्मृति ने पलाश को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट सिचुएशन में पकड़ा। ये पोस्ट मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। My ex-situationship worked in popular PR firm and I reached out to him regarding the rumors as I really adore Smriti. Am not at all making this up. He literally showed me chat from his work WhatsApp group where all these things were being discussed. So reality is Palace actually cheated and now paying PR firms to curate these hospital admit news and curated hospital visits and even paying meme pages for whitewashing, but nothing is working now. So basically this Nandika Dwivedi girl is the side chick. They are banging each other since she was allotted by Bosco team to train Palas for choreography, and Gulnaz was actually working with Smriti close friend and cricketer Shriyanka caught Palas and the girl in full bang bang mode, and they were caught red-handed by Smriti. Full-on outburst between the families happened and Smriti's brother in fact attacked Palas, by which he got little injured. Afterward, his father complained chest pain and was taken to hospital for heart attack. Most of the guests slept off by then. In morning, guests were told wedding is cancelled due to Smriti's father condition. But word spread because Smriti was howling and crying like crazy. The choreographer escaped the venue as soon as possible, and Palak also took Palas to Mumbai as soon as possible. All this acidity drama is bullshit. I just wish nothing but lot of happiness for Smriti. The girl went through hell, but thank God her father is stable now. The cricket girls are with her only as they did not left and being her rock. Now coming to how desperate am I, why ex situation also cheated me as I caught him kissing another girl. Also, I kid scared. Can someone send me legal notice for putting this post? Shall I delete this? Please let me know. पोस्ट से क्लियर पता चल जाता है कि स्मृति को चीट किया गया है। वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नंदिका का एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट आता है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने लिखा, ओवर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव सीन स्पेकुलेशन अबाउट माई इन्वॉल्वमेंट इन अ सिचुएशन दैट हैज़ बीन डीपली पर्सनल फॉर अदर पर्सन. आई वॉन्ट टू एड्रेस एंड क्लैरिफाई दैट the assumptions being made about me, particularly the idea that I played a role in disrupting someone's relationship, are simply not true. It's extremely painful to watch a narrative form around something I had no part in, and ever more difficult to see how quickly these stories grow without any basis in reality. Media outlets specifically are publishing articles with information from forums like Reddit where anyone can post whatever they want, resulting in defamation.
का अपना पॉइंट रख सकती हैं, लेकिन इतने टाइम के बाद इट लुक्स लाइक समथिंग इज़ फिशी। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी टीम ने उनसे पोस्ट कराया हो, क्योंकि कोई भी फिर उनको हायर नहीं करेगा वेडिंग कोरियोग्राफी में अगर उनकी पहचान ऐसी बन गई कि वो फ्लर्ट करती हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं देती हैं। ऑल दिस लुक्स लाइक ड्रामा टू सेव देयर बिजनेस। बात करें पलाश की मदर के स्टेटमेंट की, तो वो कंटिन्यूसली इसी बात को कह रही हैं कि वेडिंग होगी। शी सेड स्मृति एंड पलाश दोनों तकलीफ में हैं। पलाश ड्रीम्ड ऑफ कमिंग होम विद हिज ब्राइड। आई हैड इवन प्लान्ड अ स्पेशल वेलकम। एवरीथिंग विल बी फाइन। शादी बहुत जल्द होगी। ये सब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो रूमर्स चल रहे हैं, चीटिंग रूमर्स, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। कोई भी अभी किसी भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। पलाश की पूरी फैमिली उनकी इमेज को वाइट वॉश करने में लगी हुई है, लेकिन कोई भी चीटिंग रूमर्स का क्लैरिफिकेशन देने को तैयार ही नहीं है। अगेन एंड अगेन दे आर प्रोटेक्टिंग देयर सन। स्मृति की फैमिली की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। इवन उनके भाई ने तो पलाश को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया है, लेकिन स्मृति की फॉलोइंग लिस्ट में अभी भी पलाश हैं। एट द एंड आई वुड से स्मृति एक सही डिसीजन लें। वो अपने आप के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और एक सही डिसीजन लें, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा।